ایم کیو ایم کی قیادت انتشار کا شکار، لڑائی جھگڑا اور عہدوں کی تقسیم پر اختلافات۔ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ خالد مقبول صدیقی نے صاف صاف کہہ دیا، مجھ سمیت پوری پارٹی کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری پر اعتماد ہے۔ ایم کیو ایم گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی۔ کل کا واقعہ افسوسناک ہے، اس معاملے کو تنظیمی نظم و ضبط کے مطابق دیکھیں گے۔ ایم کیو ایم ڈسپلن والی پارٹی ہے، ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بہادر آباد میں اجلاس۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے اجلاس کی صدارت کی۔ انیس قائم خانی اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی شرکت۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی عدم شرکت۔ اجلاس میں کل پیش آنے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیاسی جماعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جسے حل نہ کیا جا سکے۔ جو تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے لیے تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، تعدیبی کارروائی ہوگی، یہ بیان آیا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپس میں باہم مل جل کر بیٹھ کر اسے حل نہ کیا جائے۔ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں، ایم کیو ایم نے وضاحت جاری کر دی۔ ایم کیو ایم کے مطابق سوشل میڈیا پر چند عناصر معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایم کیو ایم کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کارکن نہ ہو تو کوئی وزیر نہیں، یہ پارٹی کو خون پسینہ دیتے ہیں۔ مشرف کا دور سب سے مشکل رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال بھی کاٹے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز نے جو سختیاں جھیلی وہ سب کے سامنے ہیں۔ پارٹی کے لیے قربانی دینے والے کارکنان اور ان کے خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے کارکنان پیش ہوتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کے پھر پی ٹی آئی پر وار۔ ازما بخاری کہتی ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتوں کے بعد قوم فتنے کی احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے۔ خیبر پختونخوا نے بھی انتشار اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ حکومتی وسائل کے استعمال کے باوجود 5000 بندے اکٹھے نہ کر سکے۔ انشاءاللہ جلد مریم نواز خیبر پختونخوا کے بچوں کو بھی اسکالرشپس دیں گی۔ بینچز کے اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا نوٹ جاری۔ قوانین آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ کا 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ واپس لینا درست ہے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹس پر فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ اس ترمیم میں آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے، جسے پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کی استدعا۔ علی ظفر کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کا معاملہ حل نہ ہو جائے اجلاس مؤخر کیا جائے۔ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ ججز تبادلے سے تاثر ہے کہ انتظام بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے بندوبست ہے۔ مناسب ہوگا کہ ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے۔ آئی ایم ایف اسکوپ مشن اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد دورے کے دوران ٹیکسیشن اور منی لانڈرنگ کے ایشوز کا جائزہ لے گا۔ آئی ایم ایف ٹیم کی مختلف وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ وفد ٹیکس پالیسی بنانے اور اس پر عمل درآمد میں گورننس کے خطرات کا جائزہ بھی لے گا۔ اگلے ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہوگی۔ ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2025 جاری۔ ماہرین کی آرا پر مشتمل رپورٹ میں حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے کا جائزہ 11 ماہ میں کی گئی 120 سے زائد اصلاحات کا احاطہ کیا گیا۔ معاشی عدم استحکام، افراط زر مبادلہ، قرضوں کے حوالے سے تفصیلی معلومات۔ رپورٹ پاکستان کے بارے میں خلا کو پر کرنے کی منفرد کاوش ہے۔
वज़ीर ख़जाना की लिस्बन में बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। एलामी के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा गया। ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखली का बयान, तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार। वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आने वाले दिनों में इन पेश रफ्तों पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब ने गजा के हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने नेतन्याहू के बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीनी कोई पनाह गुज़ीर नहीं है कि कहीं मुंतकिल किया जाए। नेतन्याहू का बयान इजरायली मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। UAE का भी इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद। उर्दन और दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी सेहूनी वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की जंग ज़दा मुल्कों से इजहार यकजहती। लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 22वीं इमदादी खेप रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन सामान शामिल। नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल फतह का भरम खाक। जंग बंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का 5वां तबादला। हमास ने 3 यरगमाली वापस किए। बदले में इसराइल से 183 फ़लस्तीनी रिहा करा लिए। 18 उम्र कैद और 54 तवील सज़ा के कैदी शामिल। कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। हर तरफ खुशी और जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बच्चों से लिपट कर रो पड़े। सेहूनी रियासत के मजलूमों पर वार जारी। मुसलसल हमले से गजा के इलाके जबालिया में फ़लस्तीनियों को शदीद मुश्किलात। जंग बंदी मुआहिदे के बाद मकीनों को वापसी, शदीद परेशानी का सामना। पानी की शदीद किल्लत, खुराक और दवाएं नापैद। शहर में फराहमी आब का निज़ाम तबाह। दूर दूर से पानी भर कर लाने पर मजबूर। लोगों का कहना है इलाके में पानी ज़रूरत से बहुत कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को इमाराती नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दौरे की दावत दी। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब भी करेंगे। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला के फंड्स रोक लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहली 6 माही में 677 अरब 69 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। वफाकी कर्ज और ग्रांट्स की मद में 76 अरब 12 करोड़ का ऑपरेशन जाहिर किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सूबे ने जुलाई तक दिसंबर 30 अरब 65 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। जिला खुर्रम के लिए सामान का 8वां काफिला टल से रवाना। 120 छोटी बड़ी गाड़ियों में अशिया खोरनोश और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया भेजी गई हैं। काफिले की हिफाजत के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पाक सरजमीन को शरपसंदों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली और DI खान में किए गए। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में 4 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी भी हुए। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, एक और जिंदगी खत्म। नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे में जान गंवा बैठा। 22 साला हसनैन बहन को डिनर के लिए ले जा रहा था। नेशनल हाईवे पर हसनैन की मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकराई। तेज रफ्तार गाड़ी ने हसनैन को कुचल दिया। हादसे में हसनैन की 13 साला बहन भी जख्मी हुई।
कराची की सड़कों पर आहो बका, हैवी गाड़ियां जान की दुश्मन, रवा बरस हादसात में 96 खानदान उजाड़ दिए। 1 फरवरी को साइट एरिया वेलिका चौरंगी के करीब हादसे की फुटेज सामने आ गई। जाँ बहक होने वाला राहील सड़क के बीच खड़ा हुआ तो मोड़ काटते हुए वाटर टैंकर ने उसे कुचल दिया, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची के परेडी थाने के लॉकअप में जाबाग ताजिर वक्कास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा नॉर्थ नाजमाबाद डिसल्वर ग्राउंड में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, मारूफ ताजिरों, इलाका मकीनों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। ताजिर बरादरी ने मुतनब्बह किया है कि अगर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। नवी अमन मश्क के दौरान 2 रोज़ा अमन डायलॉग का आगाज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तिजारती तारफ के एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात से आगाही देना है। कराची में पाक बहरिया की अमन मश्क का तीसरा रोज पाक बहरिया पुलिस और पाक फजाइया के बैंड्स ने अमली मुजाहरा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी। मनोड़ा के साहिल पर इंसदाद दहशत गर्दी से निमटने के लिए अमली मुजाहरा किया गया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। तदफीन में मुख्तलिफ ममालिक से इस्माइली कम्युनिटी के सरबराहान भी शरीक होंगे। कश्मीरी हुर्रियत पसंद अफजल गोरो की शहादत को 12 साल बीत गए। कश्मीरी हीरो को 2013 में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। अवाम को मुतमईन करने के लिए अफजल गोरो को फांसी दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एतराफ, अफजल गोरो जैसा बहादुर शख्स नहीं देखा। तिहाड़ जेल के साबिक अहलकार का बयान। एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर तंजीमों ने भी फांसी पर सदाए एहतजाज बुलंद की। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज कौमी क्रिकेट टीम दूसरा मैच खेलने के लिए कराची पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दी थी। कीवी टीम कल लाहौर में प्रोटेस्ट के खिलाफ मैदान में उतरेगी। नौजवान ओपनिंग बल्लेबाज साइम अय्यूब का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानिया में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर्म में है, उम्मीद है बेहतरीन नताइज देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिना मुनव्वर को कौमी मर्दों की क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर कर दिया। वो पहले भी खवातीन अंडर 19 टीम की मैनेजर रह चुकी हैं। हिना मुनव्वर सिक्योरिटी और ऑपरेशंस का वसी तजुर्बा रखती हैं। इससे कबल फ्रंटियर कांस्टेबलरी में भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। उनकी तकर्रुरी क्रिकेट ऑपरेशंस को मजीद मौसर बनाने की एक कोशिश समझी जा रही है। चेयरमैन पीसीबी से वजीर खेल पंजाब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनेकाद और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर तबादला ख्याल। आपने बड़े टास्क को जिस खुश उसलूबी से मुकम्मल किया वो काबिल सताइश है। फैसल खोकर की मोहसिन नकवी को रिकॉर्ड मुद्दत में कद्दाफी स्टेडियम की तामीर पर मुबारकबाद। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। कोयटा, ज़ियारत, चागी, नौशकी और योब में बारिश और बर्फ का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, वज़ीरिस्तान में बारिश बर्फबारी का इम्कान। बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, लाहौर में गर्मी ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। कराची में रात को दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्के। और रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस इख्तिताम पजीर। रेस में 2000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। मुख्तलिफ उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। 6 किलोमीटर रेस की तीनों कैटेगरीज में फातिहीन को 3,50,000 का नकद इनाम दिया गया।